Class 11 we'll focus on the part in your S block elements. We have already discussed about the first group members and we are moving on the second group members. So second group elements, maybe we have discussed about the different characteristics, and now we are focusing on the new character, that is electropositive character or the metallic character. If you go through the alkaline earth metals, you know that they are present in the group 2, and I have written some of the elements and their atomic numbers also. So you know that they are highly electropositive in nature, right? They are, because they are acquiring a positive charge, so two positive charge, so they are highly electropositive, and because of that they have high metallic characters. This thing is there, but if you compare it with the alkali metals, then they are less electropositive and they have a low metallic characters also. ठीक है, अपने में कह रहे हैं, when you are talking individually about the alkali earth metals, then you should understand they are highly electropositive and they shows high metallic characters. But when you are comparing it with this thing, your alkali metals, then you should understand that they are less electropositive and they shows less metallic characters. Now first of all we'll solve this query that this alkaline earth metals have, we are not talking about this part, we are just talking about when you compare it with the alkali metals. जब आप alkali metals से alkaline earth metals से compare करते हैं इन दोनों के बीच में, तो चीज़ें फ़र्क आती हैं. alkaline earth metals जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप alkali metals के comparison में कर रहे हैं, तो उस condition में you have to keep it in mind that they, first of all we are solving a query between these things कि alkali earth metals have they are less electropositive comparison to alkali earth metals. अगर आप इनसे compare करेंगे तो उस केस में ionization energy बदल जाएगी. ठीक है, कि in alkaline earth metals the ionization energy value is higher, so ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी कंपैरिजन टू alkali metals. लेट्स फोकस ऑन इट वंस अगेन. जैसे आप यहाँ देखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. ठीक है, और यहाँ पे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, नेक्स्ट मेंबर है 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा पड़ेगी कंपैरिजन टू एल्कली. यहाँ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो ns1 से निकलना है, यहाँ से ns2 से, जो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. ठीक है, तो आपकी ये पीछे देख के आए हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन सेकेंड आयनाइजेशन, लेकिन यहाँ पे जब पहला मेंबर आपको निकालना है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है ना, और ये आपको पता है कि ये ns1 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा और मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दैट्स वाई यू हैव द आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर इन एल्कली अर्थ मेटल कंपेरिजन टू एल्कली मेटल्स. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर सिनेरियो ऑफ ग्रुप, जैसे हम ग्रुप की बात करते हैं, मैंने ये भी लिखा हुआ है, ग्रुप्स में हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो आप जब जैसे जैसे ग्रुप में मूव करते हैं तो देखो आप मालूम है कि उस समय आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है. ये आपको क्लियर है, क्योंकि न्यू शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. दैट्स वाई वी नीड अ लो आयनाइजेशन एनर्जी, वी हैव डिस्कस हियर. So when you move down the group, the ionization energy value is low or it decreases. Why? Because two factors are there, that your atomic radii is increasing. Second thing is that your shielding effect is increasing. ठीक है, इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से जो न्यूक्लियर पुल होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो हम व्हेन यू मूव इन अ ग्रुप देन यू नो दैट दिस फैक्टर अराइजेस. ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जो ये होंगे आपके, ये अगर आप कैल्शियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लूज़ कर जाएगा कंपेरिजन टू मैग्नीशियम के लिए. क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई भी ज़्यादा है and shielding effect is also more. So no matter the nuclear charge is more, but it will the जो न्यूक्लियर पुल लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, जो लग रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो टेंडेंसी इंक्रीजेस, सो दे बिकम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. तो अगर हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम कम होगा. ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास अराइजेस होती है. एक ये सेकंड क्वेश्चन आपका बना कि डाउन द ग्रुप में क्या कंडीशंस है, क्या हो रहा है. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस व्हेन यू कंपेयर इंडिविजुअली एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हेन यू कंपेयर. सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो पोजेस करते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अभी आपने देखा है
लो आयनाइजेशन एनर्जी पोजेस करते हैं एंड दे कैन रिमूव ईजली योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम अ डाई पॉजिटिव आयन एंड दैट्स वाई दे बिकम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इंडिविजुअली की बात हो रही है कि जब अकेले की बात करेंगे आप एल्कलाइन अर्थ मेटल की, उस जगह आप कहेंगे कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो लगती है। लेकिन आपने एल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करा तो हाई दिखाएंगे। यहाँ पे आप हाई आप देख रहे हैं कैसे आपने दिखाया है, कब, जब इन दोनों का कंपेरिजन। लेकिन इंडिविजुअली आप टास्क में देखेंगे, चाहे ग्रुप में चाहे इंडिविजुअली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करेंगे, मतलब अगर इंडिविजुअल एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो पूरा कॉन्सेप्ट लगा लेना कि ग्रुप का ही लगेगा कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड बिकम डाई पॉजिटिव आयन and they are high electropositive, shows high electropositive character. ठीक है, so these are the characters, this is important. Now next is tendency of dye-positive ion, जो basically हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी देख सकते हैं। तो अगर हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंडीशन देखते हैं कि ये लोग क्या बनाते हैं और क्या नहीं। ठीक है, now you have seen the alkaline earth metals, they forms di-positive ion by losing 2 electrons, acquire a positive charge over here। जैसे अर्लीस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसा था और इसने ये लूज़ करे अपने इलेक्ट्रॉन्स और ये 1s2 2s2 2p6 बना लेता है जो नियरेस्ट नोबल गैस के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डाई पॉजिटिव कैटाइंस ये बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या इंडिकेट होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी स्टेट बनाएगा ये, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यू नो दैट दिस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ना, आप इनको सॉलिड स्टेट में भी देख सकते हो। ये वाटर सॉल्युबल होता है तो आप इनको है ना एक्वस सोल्यूशन में भी आप देख सकते हो इनको। ठीक है ना, जब आप सॉलिड स्टेट में देख रहे हो तब उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उस कंडीशन में भी ये डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, और तुम्हें मालूम है भाई ये आपके ज़्यादातर ना इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लैटिस बनाएंगे, मतलब क्रिस्टल्स बनाएंगे। क्रिस्टल्स हैं तो इनके पास है ना, आपको पता होना चाहिए कि लैटिस साइट होती है और लैटिस एनर्जी होती है इनकी, है ना। ये सब चीज़ें हमने भी अब डिस्कस अबाउट इट। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैटिस तो भैया चलो सपोज करो हम एक जनरल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इसका क्रिस्टल। अब जैसे इसके जो भी इसके अंदर एनाइंस और कैटाइंस है उनने मिलके एक क्रिस्टल बना दिया। ठीक है, उसको एक शेप दे दिया है जिसको हमने लैटिस कह दिया। अब यहाँ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो जो आयंस होते हैं जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उन्हीं को हम लैटिस साइट बोल देते हैं। अब लैटिस, ये समझ में आ गया, लैटिस साइट। अब एक वर्ड आया लैटिस एनर्जी, that what does it mean? So lattice energy is the energy released in the formation of 1 mole of an ionic crystals from its constituent gaseous पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सो लैटिस एनर्जी जब देखो अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ने एक क्रिस्टल बनाया तो उसने एक लैटिस बनाया। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि जो इसकी ये आयन्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ये लैटिस साइट्स में अटैच्ड होंगे। तो जब ये एक मोल पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल जब बनता है तो उसके बनने में वो कैसे बनेगा, यही पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो हैं वो अटैच्ड होकर क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो जब वो क्रिस्टल बनाते हैं तो उसको बनाने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज्ड होती है। तो दैट एनर्जी इज़ नोन एज योर लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो व्हाइल फॉर्मिंग यू दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस, व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीन रिलीज्ड व्हेन यू आर फॉर्मिंग 1 mole of ionic crystals from its constituents, these things, positive and the negative ion. And you know when they form the positive and the negative ions, they behave as a gaseous form. So that energy is known as your lattice energy, right? So basically you know they are di-positive alkaline earth metals and they have a large amount of energy is released because यहाँ पे डाई पॉजिटिव है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी इनकी रिलीज़ होती है। ठीक है, it's fine when you are forming a alkaline earth metal.
Now let's come to the aqueous solution part also. So by when they are forming in the formation experience, you know that they forms always a dipositive cation, and this dipositive cation ये बनाएंगे. अब ये dipositive cation में यहाँ aqueous solution है, मतलब तुमने जो सॉल्ट लिया उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया है. ठीक है, तो जब वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी होती है. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा था, आपने क्रिस्टल बनाया था. यहाँ पे क्या है, वही क्रिस्टल जो बना हुआ है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो. तब वो जब अब मैग्नीशियम क्लोराइड है उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया है, तब वो आपको रिस्पेक्टिव डाई पॉजिटिव आयंस दे रहा है अपने. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई पॉजिटिव आयंस जब बनेंगे तो आपको उसमें आपको हाइड्रेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस समय क्या होगा कि जब आपको ये डाई पॉजिटिव आयन बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज इन हाइड्रेशन ऑफ डाई पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाती है. जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी आपकी होगी, और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है इज़ मोर. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप. एक जनरल आइडिया है जो आपको याद रखना है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इन एक्वस सोल्यूशन व्हेन दे फॉर्म अ डाई पॉजिटिव आयन देन दे हैव अ हायर वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. क्लियर है. सो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन यू आर डिसॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्रिस्टल इन दिस थिंग वाटर, और यू आर मेकिंग इट इन एक्वस कंडीशन, देन दे गिव यू अ डाई पॉजिटिव आयन. सो दैट्स वाई यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी. उसमें ज़्यादा पता है क्यों हो जाती है, इसका भी रीज़न समझ लो कि मैं बार बार कह रही हूँ ज़्यादा हो जा रही है हाइड्रेशन एनर्जी. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज यू नो द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ बीन ऑल्सो देयर ना. यहाँ पे सिर्फ एक आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, यहाँ दो आयनाइजेशन एनर्जी होती है. एक फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है और यहाँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है. ठीक है, now we focus on the chemical properties also, and जो chemical property हमारे कोर्स में बची है, बाकी तो सब कट गया है, वो है reducing characters. ठीक है, reducing characters we have to focus. So alkaline earth metals shows reducing characters, but it is a weaker reducing agent. I am writing down. So let's focus on it. Reducing characters. So alkaline earth metal shows reducing characters, fine, but they are weaker reducing agents comparison to alkali metals. See, alkali metals ज़्यादा reducing agent होते हैं, क्योंकि रीज़न देखो, तुम्हें मालूम है कि alkaline earth metals और एल्कली मेटल्स में अंतर है भाई. एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और यू नो यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑलवेज फॉर्म अ डाई पॉजिटिव आयन. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट दैट व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू इंक्लूडेड ओवर हियर दैट इफ़ यू कंपेयरिंग द इन ग्रुप कंडीशंस, अगर इनसे कंपेयर करेंगे तो इनकी कम है, लेकिन अगर आप ग्रुप में कंपेयर करेंगे, ग्रुप में अगर आप कंपेयर करते हैं तो रिड्यूसिंग character increases in a group. So we have to see both the condition कि अगर आप alkali metal से compare करोगे तो क्या होगा, और अगर group में देखोगे तो क्या होगा. ठीक है, now have a general idea of it. If you talk about the alkaline earth metals, जैसे हमने कोई example लिया मैग्नीशियम. ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा and it will require a die positive it will require a die positive charge over here and form a die positive ion. You know how it is forming. Now it's this way you have to know that how it is being forming this thing, and you know they are also losing the electrons, right? ठीक है, तो अगर हम ग्रुप में कंपेयर करते हैं इसको कि ग्रुप में ऐसा क्या हो रहा है, तो ग्रुप की केस में तुम्हें पता होना चाहिए कि साइज़ जो होता है, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है ना, देखा है ना हमने, इंक्रीज़ करता है बिकॉज number of shells are increasing. Number of shells, so number of shells is not a specific answer. Number of shells are increasing, your answer will be in terms of atomic size. दूसरी कंडीशन आप देखते हो इसमें कि लो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ देयर, है ना. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. यहाँ मत लगा देना कि भैया ये न्यूक्लियर चार्ज लिख दोगे, लेकिन तुम्हें लो आयनाइजेशन, ये दो पॉइंट बताने पड़ेंगे कि व्हेन यू मूव डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड यू हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. सो व्हाट हैपन, दे आर ईजली, दे हैव अ टेंडेंसी टू, ऑलरेडी इनकी टेंडेंसी होती है कि दे फॉर द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बहुत ईजली, और दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन. राइट, तो ये बहुत ईजिली डाई पॉजिटिव आयन बना लेते हैं, और इसीलिए ये दे एक्ट एज अ
एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये कंडीशन है इनकी ग्रुप की। Now children, when you compare it with the alkali metals, you know that in alkali metals they alkali metals का अगर आप कंडीशन देखते हैं then they lose only 1 electrons। ठीक है, और alkaline earth metals को आप compare करते हैं then you know that they are losing how many electrons, 2 electrons। सो 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ईजी होता है कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो दे हैव अ वेरी ईजी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स in this alkali metals comparison to alkaline earth metals. That's why these alkaline earth metals acts as a weaker reducing agent when you compare it with the alkali metal। और ये मोनो पॉजिटिव आयन बनाता है, ये डाई पॉजिटिव। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, alkali metals and alkaline earth metals। but when you comparing with the alkaline earth metals, I have discussed earlier how you have to prove it। so we have completed the physical properties and characteristics and the chemical properties of it। in the next video we'll focus how different compounds are there, and we'll see their preparations। common examples are there for your case, some important compounds, some magnesium and calciums are there, so we'll see their preparations। in some cases properties are there, in some cases properties are not there, uses are there, so we'll see it in the next video।